Hello students. Today we are on our next chapter, that is the fourth chapter, Strategy of Industrial Growth 1947 to 1990. Earlier we have done agriculture sector of our Indian economy. As we know, agriculture is the main occupation of India, and industry is the secondary sector, next work from the agriculture, because agriculture is in the primary sector and industries are in the secondary sector. Both the sectors are equally important because both are dependent on each other. In agriculture we have done that because agricultural goods are the raw material for the industrial productions. In the agricultural goods are inputs for the industrial output, like cotton, jute, oil seeds. These all are the raw material for industries. Okay? On the other hand, goods which are made in the industries are used in agriculture. For example, insecticide, pesticides, fertilizers, all are made in industrial sector and are used in agriculture sector. Machineries, tools like combines, threshers, these all are made in industries but are used in agriculture sector. It means both are dependent on each other. We can't ignore agriculture or industries. Both are interdependent and both are helpful in growth and development of the economy. So earlier we have done the agriculture. 2-3 चैप्टर जो थे बेटे, 2 चैप्टर्स जो थे बिल्कुल एग्रीकल्चर के ऊपर ही बेस्ड थे. नाउ वी आर ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ. इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी यहाँ पे बेटे लिखा हुआ है 1947 to 1990, because India is divided in 3 parts after independence. One part is from 1947 to 1990. Other part is from 1990 to 2002. ठीक है. एंड थर्ड पार्ट इज फ्रॉम 2002 ऑनवर्ड्स. ठीक है. तो ये 3 पार्ट्स हैं बिकॉज इन 1947 द कंडीशन ऑफ आवर इकोनॉमी वाज वेरी बैड कंडीशन. इंडियन इकोनॉमी वाज डेप्रिशिएटेड इकोनॉमी, फ्रेगमेंटेड इकोनॉमी. ठीक है. हिंदुस्तान पाकिस्तान 2 हिस्से बन चुके थे इंडिया के. बहुत सी चीज़ें ऐसी, इंडस्ट्रीज ऐसी थी जो पाकिस्तान में चली गई थी, बट उनका रॉ मटेरियल बनाने वाली इंडस्ट्रीज जो थी वो इंडिया में रह गई थी. और बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी पाकिस्तान में चली गई थी जिनका रॉ मटेरियल इंडिया में यूज़ होता था, इंडियन इंडस्ट्रीज़ के लिए यूटिलाइज होता था. तो इस तरीके से बहुत इफेक्ट पड़ा था इसके ऊपर. तो हमने 1947 के बाद इंडियन इकोनॉमी में इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए कुछ डिफरेंट टाइप की स्ट्रेटजीज तैयार की थी. स्ट्रेटजी मीन्स टू से द वे how we can improve our industries. Industrial growth is very important for our Indian economy. For Indian economy क्या है जी, किसी भी इकोनॉमी के लिए लगा लो, एग्रीकल्चर एज वेल एज इंडस्ट्रीज बोथ आर इक्वली इम्पॉर्टेंट. ठीक है. तो इस तरीके से बेटे इंडस्ट्रीज की ग्रोथ मैंने 1947 से 1990 में बात की है. तो यहाँ पे अभी हमारा इकोनॉमी जो है 1947 में जस्ट इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस. तो एट दैट टाइम देयर वाज अ मोर नीड टू बी एम्फेसिस ऑन एग्रीकल्चर एज वेल एज इंडस्ट्रीज बोथ. ठीक है. फॉर एग्रीकल्चर वी हैव मेड द प्लानिंग इन 1951. द वेरी फर्स्ट प्लानिंग was based on agriculture. The main goal was how to develop our agriculture. बट उससे भी पहले हमारी इंडियन इकोनॉमी में 1948 में फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी थी बेटा. इंडस्ट्रियल पॉलिसी दैट वाज स्पेशली फॉर द पर्पस ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज. ठीक है. उसके बाद सेकेंड पॉलिसी was made in 1956. At that time India got republic in 1950. ठीक है. 1950 में जब हम मतलब रिपब्लिक हुए तो एट दैट टाइम many resolutions are passed for our Indian economy. The biggest resolution was mixed economy.
What is mixed economy? We are having three types of the economies. One is capitalistic economy, second is socialistic economy, and third is mixed economy. In capitalistic economy, there is the production which is affected by market forces that are demand and supply. In capitalistic, only production will be made of those goods which are highly demanded in the economy. As according to the demand, production will be made, whether that is for the benefits of the economy or for the not beneficial for the economy. Producers will do only those productions which are for the beneficial of the producers only, for their own profit maximization. On the other hand, the second was socialistic economy or socialism. In socialism, there was production for the social वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी. ठीक है, इसमें क्या था बेटे, हम लोग जब भी प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन इज मेड बाय पब्लिक सेक्टर और बाय गवर्नमेंट सेक्टर. गवर्नमेंट सेक्टर में यह है, पब्लिक सेक्टर जब भी बेटा कोई भी काम करता है, दैट इज मियरली फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी सोशल वेलफेयर, एंड गवर्नमेंट ऑलवेज डू द प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स विच आर हाईली रिक्वायर्ड इन द इकोनॉमी, नॉट विच आर हाईली डिमांडेड इन द इकोनॉमी. ठीक है, तो व्हेन देयर इज द गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, ऑब्वियसली देयर विल बी सोशल वेलफेयर. सोशल वेलफेयर मीन्स टू से सोशल जस्टिस फॉर ऑल. Social justice for all means to say government always wants to create equality in the economy. That is known as socialistic pattern of society. Socialistic pattern of society means all the people must have equal rights. All the people must have equal opportunities to work, equal chances to work. That is the socialism. But in 1950, यहाँ पे बड़े 50 में रेजोल्यूशन हुआ था, 56 में तो नई पॉलिसी बनी थी ना. तो 1950 में जब रेजोल्यूशन पास हुआ, एट द टाइम इंडिया गॉट रिपब्लिक एज वेल एज इंडिया वाज डिक्लेयर्ड एज मिक्स्ड इकोनॉमी. मिक्स्ड इकोनॉमी वेयर पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट, बोथ द सेक्टर्स विल गो साइड बाय साइड. Public sector will do the work for the public welfare, social welfare. On the other hand, private sector will do the work for their own benefit. So both the sectors will go side by side. ठीक है, दोनों बेटे दोनों का काम यह है कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर जब दोनों साथ में चलेंगे तो नेचुरली डेवलपमेंट जो है वो भी फास्ट रहेगी, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर ऑलवेज डू द प्रोडक्शन फॉर द प्रॉफिट मैटर, तो नेचुरली फास्ट प्रोडक्शन होंगी. गवर्नमेंट जो है सोशलिस्टिक पैटर्न से काम करती है, तो नेचुरली वहाँ पे हो सकता है कि समटाइम्स गवर्नमेंट विल डू द एक्सपेंडिचर्स ऑन दोज वर्क्स विच आर नॉट फॉर द बेनिफिट ऑफ द इकोनॉमी बट फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी. सो इस मिक्स्ड इकोनॉमी में बहुत सारी बातें जो थी वो ऐसी हो गई थी जिनमें दोनों की इम्पॉर्टेंस बढ़ गई. तो इंडस्ट्रीज में मैंने आपको बताया, इंडस्ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी. जब इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत है तो उस टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट एम्फेसिस ऑन द इंडस्ट्रीज. इन 1948 very first industrial policy was made for the development of industrial sector. Because अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें बड़े, एग्रीकल्चर एज वी नो इज डिपेंडेंट ऑन नेचर. ठीक है, अगर नेचर में थोड़ा सा भी बेटा कोई प्रॉब्लम आ गई तो अवर एग्रीकल्चर विल बी इमेंसली इफेक्टेड बाय दैट. बट अगर इंडस्ट्रीज़ की बात करें, इंडस्ट्रीज आर लीस्ट इफेक्टेड बाय नेचर. सपोज कर लो कई बार मौसम ख़राब है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम हो रही है, कोई बात नहीं, जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके पास जनरेटर होते हैं तो वो प्रॉब्लम भी नहीं होती. एग्रीकल्चर ओपन में होती है बड़े, तो ओपन में होने की वजह से वहाँ पे नेचुरल जो नेचर का इफेक्ट है वो ज़्यादा पड़ता है. बट इंडस्ट्रीज जो है वो उसके ऊपर नेचर का इफेक्ट कम से कम पड़ता है. बेटे वैसे भी एग्रीकल्चर के लिए ए ह्यूज अमाउंट ऑफ लैंड इज़ रिक्वायर्ड, बट इंडस्ट्रीज़ में अ स्मॉलर पार्ट ऑफ लैंड, उस पर भी हम बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगा सकते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से एग्रीकल्चर में जो आउटपुट है
होएगी या नहीं होएगी दैट इज़ नॉट श्योर, ठीक है, बट इंडस्ट्रीज़ में जो आउटपुट है दैट इज़ डेफिनेट 101% श्योर कि इंडस्ट्रियल आउटपुट विल बी देयर। हाँ, कोई प्रॉब्लम ना आए तो बात अलग है बेटा। इंडस्ट्रीज में देयर इज अ श्योरिटी, ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज वर वेरी लिमिटेड, बट उस टाइम पे मेन जो था कॉटन टेक्सटाइल मिल्स, टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज बिगेस्ट इंडस्ट्रीज जो थी, ठीक है, और जमशेदपुर, कोलकाता, बॉम्बे, यहाँ पे कुछ बेसिक इंडस्ट्रीज थी, ठीक है, बेस लगे हुए थे, वहाँ पे इंडस्ट्रियल बेस थे। सारे कंट्री में बेटे इंडस्ट्रीज नहीं थी, ठीक है। तो एट द टाइम देयर वाज द नीड ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है। हमारे पास टॉपिक है बेटे रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर in industrial development. As we know, private sector will do the only production of those goods which are highly demanded in the market, which are beneficial to the private sector, whereas public sector has to do the production in those goods also, in those sectors also, whether they are beneficial or not beneficial, but that are required for the डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। तो उस टाइम पे गवर्नमेंट ने अपनी इंटरवेंशन, अपने डायरेक्ट जो रोल है वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया बेटा, प्ले किया, ठीक है। तो क्वेश्चन यही है कि ना व्हाट शुड बी द रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। कहते इट वॉज फेल्ट बाय द policy maker that objective of industrial development could not be left to the free play market, मतलब कि free play market which is for the private sector which do the work for the profit motive only, ठीक है। For free play of the market forces demand and supply to the private sector, but it should be directly made by the public sector. It should be directly done by the पब्लिक सेक्टर ऑल्सो। हेयर आर सम रीजन्स कि गवर्नमेंट को इसमें डायरेक्ट अपनी खुद की रोल प्ले करना पड़ा, दैट आर लैक ऑफ कैपिटल टू अंडरटेक इन्वेस्टमेंट, ठीक है, लैक ऑफ कैपिटल टू द प्राइवेट सेक्टर भी बोल सकते हो, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर के पास इतना पैसा नहीं है कि वो पैसे को कहीं पे भी यूटिलाइज कर सकें, बट पब्लिक सेक्टर जो है उसके पास जितना भी पैसा है गवर्नमेंट कैन कलेक्ट द मनी फ्रॉम टैक्सेस एंड नॉन टैक्सेस, ठीक है। गवर्नमेंट कैन यूज इट्स मनी ऑन द डेवलपमेंटल वर्क और नॉन डेवलपमेंटल वर्क्स, गवर्नमेंट जिसमें भी चाहे, ठीक है। पर पब्लिक सेक्टर विल प्रोड्यूस द गुड्स ओनली दोज विच आर हाईली बेनिफिशियल टू दैम। तो वैसे भी बड़े पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो हैं वो बड़े बड़े यूनिट्स हैं, और उन बड़े बड़े यूनिट्स में ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड which is not possible for the public sector, private sector, because private sector can't invest so much amount in the production purpose. So at that time government को ही इसमें आके पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रियल वेंचर्स रिक्वायर्ड द ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। तो प्राइवेट सेक्टर जो है इतना बड़ा पैसा, इतना बड़ा रिस्क लेने के में तैयार नहीं होता बड़े, क्योंकि जो जितनी बड़ी इंडस्ट्री होगी उतना बड़ा रिस्क भी होगा। अब उसमें अगर प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ तो प्राइवेट सेक्टर को उसको बियर नहीं कर पाएगा। पब्लिक सेक्टर फिर भी किसी भी तरीके से उसको बियर कर लेता है, बट प्राइवेट सेक्टर कांट डू सच टाइप ऑफ द रिस्की वर्क्स, ठीक है। सो पब्लिक सेक्टर को इसमें करना पड़ता है। सेकंड इज लैक ऑफ इंसेंटिव्स फॉर प्राइवेट सेक्टर और लैक ऑफ इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट। हमारे पास बेटे इन्वेस्टमेंट जो होती है वो दो तरह की होती है। इन्वेस्टमेंट बेटे दो तरह की होती है, वन इज इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट एंड अदर इज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ये बेटा आपके पास मैं यहाँ पे टॉपिक इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि ये मैक्रो में अभी आपको आएगा, ठीक है। मैक्रो में भी अब ये टॉपिक है तो नेचुरली इसका आपको नॉलेज होनी चाहिए।
induced investment which is related to profit or loss. Private investors always do induced investment because they need inducement to invest. मतलब कि they need motivation. मोटिवेशन उनको कहाँ से मिलेगी? मार्केट्स में. कहाँ से? फ्रॉम मार्केट फोर्सेस. मार्केट फोर्सेस कौन सी? डिमांड एंड सप्लाई. किसी चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पे बेटे आपके पास आ जाएगी इनकम और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट. ठीक है, अब देखो जैसे जैसे इनकम बढ़ने के चांसेस हैं दिस इन्वेस्टमेंट विल इंक्रीज. बट समटाइम्स नेचुरली ये इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर तभी करेगा व्हेन दैट इज हैविंग इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट. ठीक है, सपोज कर लो किसी प्रोड्यूसर को लगता है कि देयर आर द लेसर चांसेस ऑफ द इनकम एट दिस लेवल ऑफ इनकम, ही विल डू ज़ीरो इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ज़ीरो. अब यहाँ पे इसको और भी लग रहा है कि देयर आर द लेसर चांसेस ऑफ इनकम, देन दैट इन्वेस्टमेंट कैन बी नेगेटिव. नेगेटिव इन्वेस्टमेंट मीन्स डिसइन्वेस्टमेंट. डिसइन्वेस्टमेंट मतलब कि प्रोड्यूसर्स जो भी उन्होंने काम शुरू किया हुआ है वहाँ से मशीनरीज वगैरह सेल करनी शुरू कर देंगे या उस बिजनेस को छोटा करना शुरू कर देंगे. दैट इज़ नोन एज द डिसइन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट किसी काम में पैसा लगाना, डिसइन्वेस्टमेंट उस काम से पैसा निकालना. ठीक है, तो इट मीन्स इट नीड्स ह्यूज डिग्री ऑफ मोटिवेशन. अगर मोटिवेशन नहीं है किसी काम के लिए, अगर देयर आर द लेसर चांसेस ऑफ इंक्रीज इन इनकम, देन प्राइवेट इन्वेस्टर विल नॉट डू सच टाइप ऑफ द इन्वेस्टमेंट. दैट इज द इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट. नेक्स्ट इज ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट. Autonomous investment, whether there are more chances of income or there are lesser chances of income. If there are zero chances of the income, तो भी बेटा वो इन्वेस्टमेंट इतनी कर रहे हैं. ठीक है, इनकम बढ़ रही है तो भी दिस इज द फिक्स अमाउंट विच अ प्रोड्यूसर हैज़ टू यूज ऑन प्रोडक्शंस. ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं बेटे कि इसको गवर्नमेंट सेक्टर ही करेगा. कई बार प्राइवेट सेक्टर भी इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स करते हैं. कई बार ऐसा होता है कि बेटे मार्केट में किसी टाइम पे कोई डाउनफॉल चल रहा है, ठीक है, उस टाइम किसी प्रोड्यूसर का डाउनफॉल चल रहा है, अगर उस टाइम पे वो अपनी प्रोडक्शंस करनी बंद कर देगा तो जितनी भी उसकी डिमांड हो रही है मार्केट में वो भी नहीं होएगी, क्योंकि लोगों को ये लगेगा कि ये प्रोड्यूसर जो है वो पिट गया, मार्केट से आउट है. तो उस टाइम पे उस इन्वेस्टर को अपने आप को मार्केट में बैठा के रखने के लिए, बना के रखने के लिए कुछ लिमिटेड अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा. दैट कैन बी आल्सो सेड in autonomous investment. Autonomous investment which is not related to profit or loss. The amount which a producer or government has to minimum do, that is known as the autonomous investment which is free from profit or loss. ये investment जो government करती है that is for the social welfare. ठीक है, और प्राइवेट इन्वेस्टर अगर करता है तो वो अपने आप को मार्केट में अपनी गुडविल को ख़राब नहीं करना चाहता, तो एट दैट टाइम ही हैज़ टू डू सच टाइप ऑफ द इन्वेस्टमेंट. अब फिर मैं टॉपिक पे जाती हूँ बेटा. अगर हम लोग इंड्यूसमेंट की बात करें तो लैक ऑफ इंसेंटिव्स फॉर द प्राइवेट सेक्टर, समटाइम्स द प्राइवेट सेक्टर इज़ नॉट हैविंग द इंसेंटिव्स और दैट इज़ नॉट हैविंग द मोटिवेशन कि उसको कोई इनकम मिलने के चांसेस हैं, ज़्यादा कैपिटल भी लगी, आगे जाके प्रॉफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, उस टाइम पे वो रिस्की है, तो ही विल नॉट डू सच टाइप ऑफ द ह्यूज इन्वेस्टमेंट. एट दैट टाइम पब्लिक सेक्टर हैज़ टू डू दीज इन्वेस्टमेंट्स वेदर दैट आर बेनिफिशियल और नॉट बेनिफिशियल, बट गवर्नमेंट को वो पैसा खर्च करना ही पड़ेगा. द नेक्स्ट इज सोशल जस्टिस. सोशल जस्टिस इज रिलेटेड टू सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी. Socialistic pattern of society means to say all the society people are same, they are having equal chances to get jobs,
दे आर हैविंग इक्वल चांसेस टू गेट रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग जो भी काम बेटे उनको करना है, उनको जॉब भी मिलनी चाहिए, उनको इनकम भी मिलनी चाहिए, उनको चांसेस टू हैव द जॉब, सोशल जस्टिस भी सबके लिए इक्वल होना चाहिए। तो ऐसे कामों के ऊपर जो पैसा है इज मियरली इन्वेस्टेड बाय द गवर्नमेंट ओनली। प्राइवेट सेक्टर ये पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगा। 5 ईयर प्लानिंग का मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि इकोनॉमी में सब लोग इक्वल हों, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ हो, देयर शुड बी नो गैप बिटवीन रिच एंड पुअर। तो ऐसे कामों के लिए जो पैसा है विल बी इन्वेस्टेड बाय द पब्लिक सेक्टर ओनली। सो दैट इज़ वाई बेटा एट द फाइनली मैं यही बोलूँगी कि गवर्नमेंट जो है वो अपना वाइटल रोल प्ले करती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर कई बार ऐसा होता है कि काम को खुद नहीं करना चाहता। तो ऐसी जगह पे प्राइवेट सेक्टर में बी कॉम्प्लीमेंट्री टू द पब्लिक सेक्टर। और ये भी हो सकता है कि प्राइवेट सेक्टर कैन गेट इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट फ्रॉम द एक्सपेंडिचर्स मेड बाय द पब्लिक सेक्टर, क्योंकि पब्लिक सेक्टर जब भी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करेगा तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होने से, जब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होएगी तो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होएगा, जिससे लोगों की इनकम इंक्रीज होएगी। जब इनकम इंक्रीज होएगी तो उससे लोगों की एग्रीगेट डिमांड विल इंक्रीज। व्हेन एग्रीगेट डिमांड विल इंक्रीज देन देयर विल बी नीड to increase the aggregate supply, and aggregate supply will be increased by private sector as well as public sector both, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को भी जब लगेगा कि डिमांड हो रही है, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो रही है, तो वो भी एग्रीगेट सप्लाई को इंक्रीज करेगा। बेटे मैंने ये टॉपिक को मैशअप किया है विद मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैंने जानबूझ के आप लोगों को ये टॉपिक मिक्स करके बताया है ताकि आप लोग इन दोनों को मिक्सअप करके ईजीली इसको अंडरस्टैंड कर सको। आज के लिए बेटे इतना ही काफ़ी है। इस टॉपिक को प्रॉपर तरीके से पढ़ लेना। आगे हम लोग करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज इन आवर इंडियन इकोनॉमी, and next what policy had made by the government for the improvement of industrial sector। ठीक है जी, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।